Hello everyone, welcome to Ansarkari. In this video, we'll be continuing with the newspaper series, and today we'll be dealing with the articles of 8th May 2024. So this first article talks about the advanced medical directives or the living will that is created by the people in order to make decisions if they are not capable of during advanced illnesses or at the time of their death. So, this article mainly highlights points regarding death literacy and Badme in solutions. It talks about palliative care and how people they prefer to rather die at their homes rather than at hospitals with also hefty bills, etc. So the article starts with the example of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ji, who spent like 8 last years of his life after a stroke, which left him non-ambulant. And also, he was on artificial life support system when he died. So specifically in case of incurable diseases, when the doctors do know that the disease cannot be cured or even the time that is left with the patient is very less, they must prefer passive euthanasia. And so regarding euthanasia, it is the practice of intentionally ending life to eliminate the pain and suffering. And currently, passive euthanasia is legal in India. Then further we talk about the advanced medical directives, which are the living will, in which the patient expresses the way they would like to die. फिर वेस्ट और इंडिया में when we see the contrast, तो फॉरेन कंट्रीज में स्पेशली इन द वेस्ट सिर्फ 10% ऐसे केसेस है when the people they die on life support system. Otherwise, the rest of them they die at their homes with their family. India में the case is opposite. 70% of patients with incurable critical illness वो life support पे they lose their life alone in ICUs. And also जो bills वगैरह होते हैं that are also created which further pose challenges on the family. फिर प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्या क्या है, एक तो लीगल क्लैरिटी नहीं है रिगार्डिंग द एंड ऑफ लाइफ केयर दैट मस्ट बी देयर, और जो आईसीएमआर है उसमें ड्यूटी ऑफ केयर वो मेंशन करता है मिटिगेशन ऑफ सफरिंग कि वो प्रायोरिटी पे होनी चाहिए ताकि ये जो आईसीयू यूटिलाइजेशन है ये एक प्रोसेस ना बने. And further, the doctors can well identify at what time the passive euthanasia or the person is to be removed off the life support system. Further, यहाँ पे WHO की definition है which defines health as physical, social and mental well-being and not merely the absence of disease or infirmity. And also जो right to health है उसी में ही included है right to palliative care. This was a remark by our Chief Justice of India, Mr. D.Y. Chandrachud. Any additions in this? इसमें जो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में दे हैव मेड दिस प्रोसीजर क्या है, मतलब प्रोसेस क्या है जब हम पैसिव यूथनेशिया की बात करते हैं. तो पहले मजिस्ट्रेट की परमिशन इम्पोर्टेंट होती थी, तो दैट हैज बीन नाउ रिमूव्ड. Next article is regarding rules for a new dawn for the Indian legal industry. So this article mainly talks about the globalization of the Indian legal system. तो ये involve करता है the integration of foreign firms or lawyers and the domestic legal system. तो ग्लोबलाइजेशन की बात करता है हाउ इट हैज ओवरऑल फेवर्ड द नेशन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एंड इवन कल्चरल प्रोग्रेस. तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया इट हैड नोटिफाइड द रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन लॉयर्स एंड फॉरेन लॉ फर्म्स इन इंडिया 2022. 2023 में ये हुआ था अंडर द बीसीआई रूल्स. तो ये अलाउ करता है द फॉरेन लॉयर्स to set up their offices in India for some limited purposes. So it notes that the world is becoming a global village. फिर अब रोल क्या होएगा फॉरेन लॉयर्स का, हाउ कैन दे बी इम्पोर्टेंट. तो इसमें कई सारे बेनिफिट्स यहाँ पे
इन्वॉल्व है कि शुरू में द immediate profitability जो इंडियन लॉ फॉर्म्स के दैट माइट बी अफेक्टेड, बट इन लॉन्ग टर्म जो सस्टेन्ड एक्सचेंज है नो हाउ का, स्किल्स का, एक्सपर्टीज का बिटवीन द लॉयर्स अक्रॉस जुरिस्डिक्शंस, दैट विल टेक प्लेस। और ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी ड्यू टू द इंक्रीज कंपटीशन, बेटर वर्क कल्चर और रेम्यूनरेशन होएगा। बट ऑफ कोर्स सिंस देयर आर मेनी रिस्क, तो रेगुलेशन भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि जो एथिकल रूल्स हैं एंड जो jurisdiction है, फॉर एग्जांपल रिगार्डिंग द एक्चुअल नॉलेज दैट मे बी ओनली अ नेटिव कैन अंडरस्टैंड, तो वो बेटर परफॉर्मेंस हो पाएगी ऑफ द इंडियंस ओनली इन इंडिया। तो दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ चैलेंज, ताकि डिस्टॉर्शंस ना हो, तो रेगुलेशन इज नीडेड हियर। एंड ऑल्सो द स्पीड एंड एक्सटेंट, कि कितनी क्वांटिटी में आ रहे हैं, व्हाट इज द एक्चुअल डिमांड एक्सेट्रा, दैट मस्ट ऑल्सो बी रेगुलेटेड इन दिस। Next article is regarding the maximum residue limit that was mentioned in the spices. तो recently क्या हुआ था, जो maximum residue limit है, this is a kind of an upper bar, कि मतलब highest amount of pesticide residue जो कि present हो सकता है फूड में या फिर फीड में, जितना कि टॉलरेट कर सकता है। तो इसका जो बार है, दिस वाज अप्रेज, तो ये इंक्रीज हो गया था टू 0.1 मिलीग्राम पर केजी। 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ था, पहले इट वाज 0.01 मिलीग्राम पर केजी। एंड दिस लिमिट इज एप्लीकेबल स्पेशली इन द केसेस जहाँ पर जो एक्चुअल लिमिट है वो मेंशन नहीं है, वरना स्पेसिफिकली द लिमिट्स आर दे आर ऑलवेज स्पेसिफिकली मेंशन। दिस वाज डन बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और यहाँ पे अगर रीजंस देखें कि व्हाई द लिमिट्स हैव बीन इंक्रीज, तो स्पेसिफिकली फर्स्ट देयर इज दिस टर्म दैट इज मेटाबोलाइट्स। तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि तब बनते हैं जब पेस्टिसाइड्स ब्रेक डाउन कर जाते हैं इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, इनको मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम पेस्टिसाइड, मेटाबोलाइट्स को भी हम काउंट करते हैं विद इन दिस लिमिट दैट इज मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट। और सेकेंड रीजन ये है कि अगर बहुत ज्यादा कम होते हैं तो इनका डिटेक्शन भी इट बिकम्स टफर। तो इफेक्टिवली इनको मेजर करने के लिए द लिमिट्स हैव बीन रेज्ड। and also the levels of pesticides that can be effectively controlled in agriculture, तो वो भी अगर लिमिट को इंक्रीज कर देंगे तो दैट विल बी बेटर इन इम्प्लीमेंटेशन, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। अब बात आती है कि क्या एक्चुअल में इसके हेल्थ इम्प्लीकेशंस इतने होंगे। तो द मेन पॉइंट देयर इज कि यहाँ पे इंडिया में स्पेसिफिकली ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडियंस कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ स्पाइसेस, तो दैट माइट लीड टू बायो अक्यूमुलेशन या फिर मैग्निफिकेशन, जिससे कि पेस्टिसाइड्स अक्यूमुलेट हो सकते हैं ओवर द टाइम। बट जनरली ये जो लिमिट है, ये थ्रेशोल्ड, सेफ्टी थ्रेशोल्ड लिमिट से ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम होती है, मतलब कि जो एक्चुअली हार्म कर सकती है लिमिट। तो दैट इज वाई ये जो अमाउंट ऑफ इंक्रीज है, दैट इज इट इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट। और MRS they are decided and periodically reviewed based on the field trial data जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं टू द सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमिटी, CIB एंड RC। So this is why this concern is not that major. But of course, जो foreign countries जैसे कि सिंगापुर, हांगकांग, like they remove these products from their shelves, तो उसके लिए more regulation is needed according to the country's demands. Now this next article is regarding Indira's triumph and tragedy. So Miss Indira Gandhi, she was the former Prime Minister of India, and गिविंग अ बिट बैकग्राउंड, स्टार्टिंग में 1969 में ड्यू टू सम पार्टी इंडिसिप्लिन के एलिगेशंस लगे थे इंदिरा गांधी जी पर। तो उसके बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो मेजरली टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। एक तो जो विच वाज लेड बाय इंदिरा गांधी हरसेल्फ, एंड सेकंड वन वाज लेड बाय मोरारजी देसाई। फिर 1975 से लेकर के 1977 तक देयर वाज इमरजेंसी इन इंडिया। उसके बाद 1977 में व्हेन इट एंडेड, अगेन इलेक्शंस टुक प्लेस,
और तब जो मोरारजी देसाई है टू फॉर्म अ गवर्नमेंट लाइक सिंस ही वाज पार्ट ऑफ आईएनसी, तो उन्होंने एक तरह का कोएलिशन फॉर्म करा विद चौधरी चरण सिंह जी। तो इन्होंने मिलकर जनता क्रिएट करी। सो दिस जनता वाज अ पार्टी एंड फर्दर सब पार्टी, यानी कि जैसे कि ये भी कोalition ही था जनता, तो इसके अंडर में चौधरी चरण सिंह जी की जो पार्टी थी दैट वाज नोन एज जनता पार्टी, स्पेसिफिकली मेंशनिंग द नेम। But what happened was, when Morarji Desai, he took the oath and he became the prime minister in 1977. तो कुछ इंट्रा पार्टी डिस्प्यूट्स हुए इन जनता itself, तो it led to a failed coalition। और उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ एंड देन मोरारजी देसाई ही हैड टू रिजाइन on July 15. तो 1979 तक this was there. Then specifically talking about no confidence motion, ये एक तरह का फॉर्मल प्रपोजल होता है जब जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के व्हेन दे लैक कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उस टाइम पे इट इज पास। कौन से आर्टिकल में इसका मेंशन्ड है? इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 75। कौन इसको प्रेजेंट कर सकता है? एनी मेंबर कैन प्रेजेंट इट। और प्रेजेंट करने के लिए जो मोशन है उसको बेसिक क्राइटेरिया ये है कि इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय एटलीस्ट 50 मेंबर्स। और नेक्स्ट यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी, और अगर इसको पास करना होता है देन सिंपल मेजोरिटी इज नीडेड, दैट इज 51% जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है मेंबर्स दे मस्ट पास। डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटीज, जनरली सिंपल मेजोरिटी देखी जाती है इन केस ऑफ पासिंग द बिल्स एटसेट्रा। एब्सोल्यूट मेजोरिटी इज अ बिट मोर क्रिटिकल एंड उसमें इट इज इन्वॉल्व कि जो एक्चुअल टोटल स्ट्रेंथ है ऑफ द हाउस, उसमें 51% पीपल दे मस्ट पास इट। वेर एज सिंपल में सिर्फ जो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उनमें से 51% दे मस्ट पास। एंड फर्दर कंटिन्यूइंग विद दिस टाइमलाइन। प्रेरणा, इसमें आप जो 51% बोल रहे हो, इट विल बी 50% प्लस वन वोट। तो 51% नहीं बोल सकते हम उस चीज को, दैट इज डिफरेंट। एंड सेकेंडली, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड एनी ग्राउंड्स व्हाइल यू आर प्रेजेंटिंग दी नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो कोई ग्राउंड्स की आपके ऊपर मतलब कंडीशंस ऐसा कुछ भी नहीं होता है। थैंक यू मानसी जी फॉर एडिंग दिस पॉइंट। देन कंटिन्यूइंग विद द टाइमलाइन, तो 1979 में चौधरी चरण सिंह जी ही वाज देयर बट ओनली फॉर लाइक लेस देन अ मंथ। तो आफ्टर दैट ड्यू टू द इंक्रीज सपोर्ट, he was removed and he could not form the government. फिर 1980 में VP Singh he became the prime minister and from the Congress party only। और फिर नेक्स्ट वाजपेयी फैक्शन का भी क्रिएशन होता है इसमें, अटल बिहारी वाजपेयी जी। एंड देन जो भारतीय जनता पार्टी है दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द भारतीय जनसंघ, दैट वाज लाइक फॉर्मरली BJS, उसमें से दिस फैक्शन वाज फॉर्म्ड। फिर लास्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग इंदिरा's tragedy, so this mainly talks about the Operation Blue Star। तो इसमें there was this जरनेल सिंह भिंद्रावाले फ्रॉम द गोल्डन टेम्पल। तो ये एक सिख मिलिटेंट थे एंड ही वाज मेनली प्रोटेस्टिंग फॉर द खालिस्तान, दैट इज द इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस स्टेट स्पेशली इन द रीजन ऑफ पंजाब। तो उसमें लाइक ही हैड टू बी काउंटर्ड बाय द आर्मी एंड ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज लॉन्च्ड। तो ये मतलब रात को टेक प्लेस कराया था, इसीलिए ऐसा लाइक ब्लू स्काई एंड स्टार, इसीलिए ऐसा नेम भी है इसका। तो 1984 में इट हैपेंड इन जून। फिर फर्दर इसके इम्प्लीकेशंस क्या हुए कि हेट्रेड क्रिएट हो गया अगेंस्ट द सिख कम्युनिटी एंड उसके बाद फिर राइट्स वगैरह होने लगे एंड देन फर्दर असैसिनेशन हुआ इंदिरा गांधी जी का बाय हर ओन सिख बॉडीगार्ड्स 18 अक्टूबर 8 1984 में। दिस वाज द होल टाइमलाइन ऑफ दिस। The next article is regarding the why electric vehicles lie at the heart of trade frictions between China and Europe. तो इसमें mainly the concern is regarding the net exports that are being done by China of the electric vehicles to Europe। तो mainly बहुत ज़्यादा इसमें exports हो रहे हैं and कुछ concerns भी rise हो रही है regarding the subsidies
जो कि चाइनीज ईवीज में हो रही है। तो मतलब कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होएगा। जैसे कि इवन इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इंडिया में जब हम एमएसपी की बात करते हैं टू द फार्मर्स, तो अगेन देर आर सम कंसर्न्स रिगार्डिंग दैट। तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट सिमिलरली इस केस में सब्सिडीज आर ऑल्सो इन्वॉल्व एज इन चाइनीज केस। तो दे आर मेनली आउट ऑफ फ्रिक्शन ओवर एक्सपोर्ट्स ऑफ चीप चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एंड जो चाइना की मार्केट है उसमें यूरोपियन कंपनीज का बहुत ज्यादा कम एक्सेस है। तो इससे व्हाट विल बी द मेजर इम्प्लीकेशंस? जो ट्रेड डेफिसिट है वो क्रिएट होएगा, सिंस द एक्सपोर्ट्स लाइक सिंस नेट एक्सपोर्ट इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम चाइना टू यूरोप, डोमेस्टिक कंपटीशन है वो इंक्रीज होएगा, उससे फिर क्राउडिंग आउट इफेक्ट भी होएगा। एंड डिपेंडेंसी भी इंक्रीज हो सकती है ऑफ लाइक यूरोप ओवर चाइना। These are the major points here. तो Then this. ओवरऑल इट इज नॉट प्रोवाइडिंग एनवायरनमेंट फॉर फ्री ट्रेड। हम बोलते हैं प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड, डब्ल्यूटीओ का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है कि चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है चीप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो कॉम्पिटिटिवनेस कम हो रही है यूरोपियन मार्केट में, एंड यूरोपियन जो कंट्रीज है दे आर नॉट बीइंग गिवन एक्सेस टू चाइनाज मार्केट। Hmm. एंड यहाँ पे हम एक और कीवर्ड भी हाईलाइट कर सकते हैं जिसको बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल है ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म का। Hmm. कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी है एक कंट्री की वो इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर रही है दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट्स लेने के लिए, जैसे यहाँ पे टैरिफ वगैरह लगाया जा रहा है, इंपोर्ट कोटा लगाया जाता है। Hmm. And unfair market access की भी बात हो रही है in addition to that keyword. And for the just companies के names etc हैं जो कि information provide नहीं कर रही है to the anti subsidy investigators. So यहाँ पे data is mentioned majorly कि China made EVs are projected to make up more than a quarter of all EV sales in Europe in 2024. तो कंट्री का जो शेयर है इन मार्केट, इट इज इंक्रीजिंग बाय मोर देन 5 percentage points फ्रॉम अ ईयर अर्लियर। तो दीज आर द मेजर पॉइंट्स। Then next article is regarding the PhD guidelines that will make life easier for scholars and streamline process. So generally the conditions that are or the eligibility criteria that is set for doing PhD, it mainly involves graduation and उसके बाद masters and then you can further pursue PhD. But यहाँ पे since there is a change now के after the new education policy 2020, जो graduation है that is shifted to 4 year timeline, currently 3 year में जैसे होता है। तो उसके बाद the proposal is there to further create the opportunity of the students like they can directly pursue PhD without pursuing masters. तो this is the first point here. इसके मेन बेनिफिट्स को आएंगे कि जो रिगरस ट्रेनिंग है जो पहले भी हो चुकी है एंड रिसर्च मेथड्स एनालिटिकल स्किल्स वो जल्दी डेवलप हो जाएंगी बिकॉज इन ग्रेजुएशन ऑल्सो जो लास्ट ईयर होएगा दैट विल बी मेनली रिसर्च ओरिएंटेड। एंड आफ्टर दैट जो पोटेंशियल है दैट विल ऑल्सो बी enhanced of the talented undergraduates. Second main point that this article highlights is admission to PhD only category for setting of cutoff marks. तो इसमें स्पेसिफिक कट ऑफ मार्क्स विल बी सेट एंड इसमें एक ऑप्शन आएगा कि एडमिशन टू पीएचडी ओनली, बिकॉज जो ये एग्जाम्स होते हैं स्पेशली यूजीसी नेट, ये जेआरएफ के लिए भी होता है दैट इज फॉर फेलोशिप फॉर पीएचडी एंड ऑल्सो फॉर द जॉब ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि मास्टर्स करने के बाद हम कर सकते हैं। तो इसमें स्पेसिफिक एक सेट लाइन क्रिएट हो जाएगी कि सिर्फ इसी फील्ड में जाना है एंड अकॉर्डिंगली द कट ऑफ मार्क्स विल बी क्रिएटेड। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? फर्दर एंट्रेंस टेस्ट जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और मल्टीपल ऐसे पीएचडी एग्जाम्स में से अपीयर नहीं करना पड़ेगा एंड प्रोसेस और स्ट्रीमलाइन हो जाएगा बी इट फाइनेंशियली और इवन मेंटली रिगार्डिंग द स्टडीज एटसेट्रा। दीज आर द मेजर पॉइंट्स। Next, this article is regarding unemployment versus wages. So this article is a bit like economically bent and इसमें mainly ये बात करता है कि ट्रांजिशन इज अ मस्ट। फॉर एग्जाम्पल जो नॉन फार्म वेजेस है, मतलब यहाँ पे मेन फोकस वेजेस के ऊपर दिया जा रहा है दैट
अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट दैट मच प्रॉब्लम जितनी प्रॉब्लम वेजेस में आ रही है कि द पीपल आर एम्प्लॉयड, बट द पॉइंट इज जैसे यहाँ पे द सेंटेंस इज रिटन दैट टू मेनी पीपल लिव ऑन फार्म्स, too few work in factories, and too many employers are informal. So this shows that uh, more participation and employment is needed in factories. और जो farms है वहाँ पे जैसे कि हम बोलते हैं कि disguise unemployment, like that is actually not fulfilling or creating productivity. Still the people they are employed. Or marginal self-employment, this refers to the very less wages that are provided. और फिर जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो भी जैसे काफी ज्यादा है, तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ दैट और मे बी रेगुलेशन इन बेटर वेज फॉर द फैसिलिटीज एंड जो बेसिक मिनिमम क्राइटेरियाज एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज है दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड इन ऑल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे मध्यम मार्ग की बात हो रही है। This majorly refers to the balance between the socialist और जो capitalist state है उसके बीच में, that is required, and majorly 3 points पे यहाँ पे फोकस करा जा रहा है कि एक तो जो वेलफेयर है, वेलफेयर वाया टैक्स, कि जो टैक्स वगैरह क्रिएट होते हैं उनसे वी कैन डू वेलफेयर फॉर द स्टेट, फॉर एग्जाम्पल फॉर द in case of hunger, poverty and also in case of health। फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस की बात होती है। एंड थर्ड इज रेजिंग प्राइवेट एम्प्लॉयर प्रोडक्टिविटी थ्रू फॉर्मलाइजेशन। दीज आर द मेजर एरियाज है। फिर यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल की बात होती है विच टॉक्स अबाउट 3 टाइप्स ऑफ पीरियड: मार्केट पीरियड, शॉर्ट रन पीरियड, लॉन्ग रन पीरियड और सेक्युलर पीरियड। तो स्टार्टिंग में जो डिमांड होती है वही प्राइस को डिटरमाइन करती है। शॉर्ट रन पीरियड में सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, फिर लॉन्ग रन पीरियड में सप्लाई डेवलप्स न्यू एफिशिएंसीज। तो ये टाइम बेस्ड है। एंड फॉर द सेक्युलर पीरियड जो कि लॉन्गेस्ट टाइम है, उसमें क्या होता है, जेनरेशनल शिफ्ट्स दे टेक प्लेस। इसमें रिकॉन्फिगरेशन होता है सप्लाई और डिमांड डायनामिक्स का। तो किसी भी इंडस्ट्री में ट्रांसफॉर्मेशन इज नीडेड इन दी स्टेजेस so as to create a shift to the other sectors। जैसे यहाँ पे शिफ्ट की बात हो रही है फ्रॉम द फार्म लेबर टू द नॉन फार्म सेक्टर्स। मेजरली दिस इज द पॉइंट। The next article is regarding the unseen effects of climate change on mental health. This article mainly highlights कि climate change की वजह से there is a major problem occurring, that is of heat। जैसे हम heat waves के बारे में बात कर रहे हैं, strokes etc. that come under this particular topic। फिर they create greater intensities of maybe they harm in greater intensities the vulnerable population जैसे कि old, poor, marginalized societies etc. and also the people who are already suffering from various illnesses। तो यहाँ पे मेनली सिजोफ्रेनिया जो कि एक मेंटल डिसऑर्डर है उसकी बात होती है विच इंक्लूड्स साइकोटिक सिम्टम्स। तो जो पीपल विद मेंटल हेल्थ है दे देयर कंडीशन सीम टू बी एट ग्रेटर रिस्क ऑफ सकम्बिंग टू हीट रिलेटेड डेथ्स। ऐसा वी माइट थिंक के जो अदर जैसे डायबिटीज एक्सेट्रा जो ऐसी मेनली फिजिकल इलनेसेस होते हैं जैसे कि किडनी डिजीज एक्सेट्रा दे आर मोर प्रोन, बट एक्चुअल स्टडीज शो के these mental disorders etc they are more prone। मेजर रीजन यहाँ पे क्या मेंशन्ड है, द प्रोसेस वर्क्स के इन दीज केसेस अ लॉट ऑफ मेडिकेशंस आर रिक्वायर्ड विच फर्दर क्रिएट द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। एंड जिससे कि फर्दर और ज्यादा हीट जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो हीट है दैट माइट कॉज फर्दर इंक्रीज विच माइट लीड टू सिवियर हेल्थ केयर इफेक्ट, सिवियर इफेक्ट्स ऑन द हेल्थ केयर। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस के डिसफंक्शन की बात हो रही है। इट इज अ स्ट्रक्चर एम्बेडेड डीप इनसाइड द ह्यूमन ब्रेन। तो ये होम्योस्टैसिस मेंटेन करता है। दिस इज मेनली रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर इन द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी, हम बोलते हैं कि फीवर हो गया, फीवर इज कॉज क्योंकि द पैथोजन दैट एंटर्स द बॉडी इट ट्राइज टू फिनिश दोज पैथोजन। तो वो टेम्परेचर इंक्रीज करने का ट्राई करता है कि मे बी उससे द हार्मफुल पैथोजन दे कैन डाई। ये जो काम होता है, ये जो रेगुलेशन होता है, दिस इज डन बाय हाइपोथैलेमस इटसेल्फ। एंड ऑल्सो जब बहुत ज्यादा ठंड होती है और बॉडी स्टार्ट शिवरिंग,
तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए करती है। दिस ऑल लाइक इज मेंटेनिंग लाइक थर्मो रेगुलेशन, और जो मेंटेन करना होता है बॉडी का, दिस मेजरली इज द वर्क ऑफ हाइपोथैलेमस, ताकि वो नॉर्मल जो फंक्शंस है दैट कैन टेक प्लेस. Then further apart from this, this is another condition that is mentioned, that is anosognosia, which is a condition in which they are unable to sense that they are there. तो ये awareness नहीं है इसमें regarding the health of the particular person. तो mitigation के लिए again those climatic changes that must be mitigated, जो भी ill effects हो रहे हैं. एंड इसके अलावा यहाँ पे हम फैक्ट भी देख सकते हैं एक और, जिसका नाम है सोलोस्टैल्गिया, जो कि ऐसे टाइप का इमोशनल या फिर एग्जिस्टेंशियल डिस्ट्रेस होता है जो कि इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से अकर होता है बेसिकली। Hmm. The next article is regarding India has 13 million square feet of ghost shopping centers in only 9 cities. So, ghost shopping centers or ghost shopping infrastructure, they are such kind of infrastructures जहाँ पे they were created for the shopping process, but again they are ghosted, like they are not being used, वहाँ पे कोई नहीं आता, and like they are just lying idle. तो दिस वाज जस्ट द डेटा. फिर इसमें रीयूज वगैरह कर सकते हैं फॉर द पर्टिकुलर टाइम बिंग, मे बी फॉर शेल्टर्स एटसेट्रा. गवर्नमेंट में भी इंसेंटिव दे सकती है. दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड फॉर द हेल्पलेस, या फिर प्रॉपर steps might be taken to re-establish them. फिर इनहेरिटेंस की जब हम बात करते हैं, सो इट मेनली इन्वॉल्व्स लाइक आर्टिकल 39 जो की बात करता है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की, दिस कम्स अंडर इट. फिर इक्वालिटी की बात होती है, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं रिड्यूस इनइक्वालिटी, इक्विटी एंड इनइक्वालिटी व्हेन वी डिस्कस अबाउट इट. इक्विटी इज लाइक स्पेसिफिकली जो नीड्स है लाइक अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द इंडिविजुअल्स, दैट मस्ट बी केटर्ड टू. फिर यहाँ पे inequality, it harms growth in the medium to long run by hampering firm productivity. These are the major cases. Second, in unequal countries, the place of birth holds inordinate power in directing lifetime outcomes. And जो high inequality होती है वो political polarization से भी related होती है. These are the major points. फिर inheritance tax और wealth tax में difference बता रखा है कि inheritance tax में ये intergenerational tax होता है और ये सिर्फ once in a lifetime levied होता है. And also it is based on a wealth that is like uh, inherited by a person above a threshold. तो एक set criteria होता है इसमें which is required here. So these taxes, they reduce the concentration of wealth and encourage shifting investments from non-productive to productive activities. Then further यहाँ पे जापान का एग्जाम्पल दे रखा है which has up to 55% of inheritance tax. तो इंडिया में भी ऐसा एक टैक्स लेवी हुआ था which was called the in estates duty tax. तो ये वेरिएंट है इनहेरिटेंस टैक्स का ही. And इसमें what happened was कि it was effective in reducing the top 1% personal wealth share from 16% to 6% between 1966 and 1985. These are the major points here. फिर इंडिया नाउ नेट एक्सपोर्टर ऑफ मेड कंज्यूमेबल्स. तो इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज बिकम अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ मेडिकल कंज्यूमेबल्स एंड disposables, reversing an earlier trend where overseas shipments of products such as needles and catheters completely dominated the market. तो मेडिकल डिवाइसेस में जो कंट्री है वो अभी भी हेवीली डिपेंडेंट है ऑन इम्पोर्ट्स विद नियरली 70% ऑफ द प्रोडक्ट्स जो कि बाहर से कंट्री से सोर्स होता है. तो यहाँ पे हम सेल्फ रिलायंस की बात कर सकते हैं. एंड ऑल्सो सिंस इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज अ लॉट ऑफ स्कोप पोटेंशियल, तो उसमें वी कैन एक्सपैंड इट बाय टेक्नोलॉजी का शेयर एटसेट्रा फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज. तो कंज्यूमेबल्स में इंडिया इज नेट एक्सपोर्टर, बट स्पेसिफिकली डिवाइसेस में इन द मेडिकल सेक्टर इट्स स्टिल इम्पोर्ट 70%. फिर रूरल एफएमसीजी डिमांड इट आउट स्पेसेस अर्बन फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर 2 years. तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, दिस मेनली इंक्लूड्स के जो कंजम्पशन है ग्रोथ फॉर द अर्बन मार्केट्स
ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड वो 5.7% थी अर्बन के लिए, वेर एज जो रूरल है दैट ग्रू एट 7.6% on the back of robust demand for home and personal care products HPC। तो यहाँ पे जो नॉन फूड आइटम्स है उनमें इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है। जो नॉन फूड आइटम्स है उनमें ज्यादा ग्रोथ है एज कंपेयर टू द फूड आइटम्स इन द रूरल एरियाज। तो यानी कि देर इज मच मोर बेटर डिलीवरी सर्विसेज एंड ज्यादा इंटरवेंशन हो रहा है इन द रूरल एरियाज। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग ईसीआई's लेटर ऑन डीपफेक्स। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है एंड हाउ इट हैज एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, जैसे कि कैंपेनिंग हो रही है, देन फर्दर टैम्परिंग एटसेट्रा, उसमें भी if the process is not that robust, then maybe the technological, maybe the cyber crimes etc even they might take place। तो ECI has not discouraged parties from using AI to create campaigns material, but उन्होंने शेयरिंग कंटेंट से रिफ्रेन करने को बोला है, जैसे कि मिस इन्फॉर्मेशन या फिर इंफॉर्मेशन जो कि पेटेंटली फॉल्स है, मिसलीडिंग है, उसके शेयर को प्रिवेंट करा जा सके। तो इम्पोर्टेंट कमेटी यहाँ पे क्या है, एक तो रिपोर्टिंग ऑफ फेक्स दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट कमिटीज ग्रीवेंस एपेलेट कमेटी, तो ये रूल 3A के अंडर में है ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021। तो यहाँ पे ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी है एंड ऑल्सो 3 hour डेडलाइन दैट इज क्रिएटेड कि 3 hours के अंडर अंडर when the party complains about the information, the fake information, तो it must be removed। और व्हाट्सएप की यहाँ पे बात होती है कि स्पेसिफिकली यहाँ पे जो सिक्योर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स है इनमें आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस है इवन दैट बिकम्स टफ। तो मेजर यहाँ पे इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं कि कैंपेनिंग में मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो सकती है, फेक पॉलिसीज बाय मे बी द अदर पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेट्रा इन द नेम ऑफ द ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने, मतलब कि वॉइस मॉड्यूलेशन का यूज हो सकता है ताकि ऐसे लगे कि एक्चुअली द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी इज making out those promises। And also information etc they can be taken in names of the subsidies or registration etc, so this must all be prevented। Next is regarding the Argentina score corn farmers are facing dangerous new enemies because global warming, a yellow insect। So, due to global warming, the since the heat is overall increasing due to the increase in carbon etc, presence of carbon etc in the air, तो एक ये येलो इंसेक्ट है विच इज जस्ट, इसको लीफ हॉपर इसका नेम है, और जो ये अर्जेंटीना है स्पेसिफिकली ट्रॉपिकल बेल्ट में ही है ये। तो कॉर्न फार्मर्स जो हैं दे आर फेसिंग डेंजरस चैलेंजेस बिकॉज जो लीफ हॉपर है दैट इज इन्फेस्टिंग दीज मेज क्रॉप्स एंड जो ओवरऑल प्रोडक्शन है दैट इज बीइंग harmed। तो अर्जेंटीना में ये हो रहा है मेनली एंड स्पेसिफिक फैक्टर्स दैट अर्जेंटीना इज नंबर 3 कॉर्न एक्सपोर्टिंग कंट्री। और ये येलो कलर का होता है, ये इंसेक्ट लीफ हॉपर 4 मिलीमीटर लॉन्ग होता है और जनरली हॉटर और टेम्परेचर्स में आता है। फिर अदर इफेक्ट्स आर लाइक वार्मर विंटर्स प्रेडिक्ट करी जा रही हैं इन सच एरियाज। देन कीपिंग द कंक्रीट प्लास्टिक, सो दिस इज रिगार्डिंग द वाटर सीमेंट रेशियो जो कि ड्यूरेबिलिटी को डिसाइड करता है ऑफ द कंक्रीट। तो यहाँ पे फ्लोस क्रिएट हो जाते हैं ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो इससे क्या होता है, जो प्रोपोर्शन होता है कि पानी जितना जरूरी है उससे ज्यादा ऐड कर देता है विच अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द कंक्रीट, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट दैट इज बीइंग फॉर्म। इसको ओवरकम करने के लिए सुपर प्लास्टिसाइजर्स हैं, तो इनको ऐड करने बिकम्स इम्पोर्टेंट एट द अप्रोप्रिएट स्टेज। This was the main point here. So water reducing amid mixtures and तो that was सुपर प्लास्टिसाइजर करते क्या है? तो दे आर इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग दिस वाटर इन दीज एड मिक्सचर्स। तो वाटर को कम करने के लिए सुपर प्लास्टिसाइजर्स। the next is regarding Japanese company SMFG to invest rupees 1.3 thousand crore in Indian arm। So this is just about investment।
Then this last article is regarding the plastic solution. So it mainly highlights curbing plastic production, eliminate करना wasteful plastic uses को, और even जो harmful chemicals है जो कि manufacturing में use होते हैं उनको भी prevent करना. तो ग्लोबल प्लास्टिक सिटी है जो इन्वॉल्व करती है एटलीस्ट 175 यूनाइटेड नेशन मेंबर नेशंस, तो टू एलिमिनेट द यूज ऑफ प्लास्टिक्स. सो ये फोर्थ राउंड था इनका नेगोशिएशन का. अब इसमें अगेन ओपिनियंस का डिफरेंस दिखाई देता है बिटवीन मेजरली द एशियन कंट्रीज, जो कि कुछ रिलक्टेंट है डेडलाइंस को मीट करने के लिए रिगार्डिंग द एलिमिनेशन. एंड प्रिवेंशन में हम क्या कर सकते हैं, लाइक मेनली हम बात करते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की. तो दैट कैन बी देयर. एक्सेसिबल और अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव्स के लिए इंडिया इज डिमांडिंग, एक पॉइंट हो गया. सेकेंड इज मोर ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड ऑल्सो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर फॉर capacity building. All these can be done so as to have an affordable shift towards a non-plastic world. These are the major points. इसके अलावा सीमेंट से रिलेटेड मैं ऐड करना चाहूंगी कि जैसे हमने देखा भी था अर्बन आइलैंड हीट इफेक्ट में, कि जो सीमेंट होता है और ब्रिक्स हम यूज करते हैं वो ओपेक होते हैं, जिस वजह से वो हीट ट्रैप कर लेते हैं. उसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन में भी जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग होती है वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है. जैसे कि जब मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को डीकम्पोज करते हैं फॉर द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग. वहां से ही लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड दो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो कि डायरेक्टली हमारे क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करते हैं. Thank you for the addition. So, thank you everyone for joining, and we will continue in the next session with the newspaper articles of 9th May 2024. Thank you.